Hello children, welcome to MVN's Academy. Today I am going to discuss some important questions and their answers of the second chapter of Class 10 English Reader First Flight. The chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now let us discuss some important questions of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. First of all, we'll discuss the short answer questions, which are of 2 marks each, and you have to write the answer in about 30 to 40 words. While writing the answer, you have to keep in mind that there is no meaning in writing lengthy answers. Your answer should be specific and to the point. Okay, now coming to the first question. What does Mandela refer to as an extraordinary human disaster? Mandela refers to the practice of apartheid that prevailed in South Africa, which discriminated the people on the basis of their race. The people with black skin were not considered equal and were not given equal opportunities. The black people were not allowed to demand freedom or any rights. They were victimized by this unlawful discrimination. And for attaining freedom, he has not only faced problems but also many leaders have sacrificed their lives and hence referred to as an extraordinary human disaster. फर्स्ट क्वेश्चन में मंडेला ने अपने स्पीच में ये रेफ़र किया था कि कुछ असाधारण मानवीय विपत्ति के बारे में बताया था, वो क्या है? तो आंसर, मंडेला रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ apartheid. apartheid का प्रैक्टिस जो था, apartheid का मतलब एक ऐसा सिस्टम था जिसमें रंग के ऊपर भेदभाव था. ये पहले साउथ अफ्रीका में बहुत प्रबल था, तो उसके बारे में बताते हैं. और वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता था कलर के ऊपर. तो ब्लैक कलर के स्किन वाले लोगों को कोई भी इक्वालिटी नहीं था, उनको कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ या चांसेस नहीं दिया जाता था और वो अपनी स्वतंत्रता नहीं मांग सकते थे, ना कोई राइट था उनको, और उनको ना सताया गया था. कैसे सताया गया था? भेदभाव की एक गैर कानूनी में फंसा दिया था एक्चुअली. एंड मंडेला ये भी बताते हैं कि फ्रीडम या स्वतंत्रता मिलने के लिए उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा. उनको ही नहीं बल्कि बहुत सारे लीडर्स को भी अपना लाइफ त्याग देना पड़ा, अपने जीवन का न्योछावर करना पड़ा. तो इसी को वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर बताते हैं. Okay, now coming to the second question. What is the glorious human achievement he speaks of at the end? The glorious human achievement refers to the freedom achieved from apartheid in establishing the first democratic and non-racial government in South Africa. It is referred to as glorious because people had worked hard to achieve it and many have lost their lives in the struggle for freedom. When Mandela became the president of South Africa, he liberated people from all kinds of bondage and discrimination. अपने स्पीच के एंड में मंडेला कुछ यशस्वी मानवीय उपलब्धि के बारे में बताते हैं. वो क्या है? ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. तो यहाँ पर आंसर, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट रेफर्स टू द फ्रीडम अचीव्ड फ्रॉम apartheid. apartheid जो भेदभाव था रंग के ऊपर, उसके ऊपर जो सक्सेस उन्होंने अचीव किया था उसी के बारे में बताया गया है. और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि apartheid से जीत लेकर के उन्होंने अपना फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया था. पहले लोकतांत्रिक और बिना कोई भेदभाव का गवर्नमेंट इन्होंने सेटअप किया था. और ये इसलिए ग्लोरियस है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का मेहनत है और बहुत सारे लोगों को अपना लाइफ का भी न्योछावर करना पड़ा. और मंडेला जब प्रेसिडेंट बन गए थे साउथ अफ्रीका का, तब उन्होंने सारे लोगों को सारे बॉन्डेज का मतलब है बंधन, सारे बंधन से उनको लिबरेट किया, उनको फ्रीडम दे दिया. कोई भी भेदभाव या कोई भी डिफरेंसेस नहीं था. Okay, now coming to the third question. What ideals does he set for the future of South Africa? Mandela had great hopes for the future of South Africa. He pledged to liberate all South Africans from bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations. He also gave them hope that they will not face any kind of oppressions in future and their victory was for justice, peace and human dignity.
तो मंडेला ने जब अपना गवर्नमेंट सेटअप किया था तब उन्होंने फ्यूचर साउथ अफ्रीकन्स के लिए कुछ आइडियल्स, कुछ आदर्शों के बारे में बताया था। वो क्या क्या हैं? तो मंडेला को बहुत बड़ी आशा था अपने फ्यूचर साउथ अफ्रीका के प्रति। उनको बहुत बड़ी आशा थी और उन्होंने ये बोला था कि ये प्रतिज्ञा, प्लेड्ज का मतलब है, उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया था कि वो सारे साउथ अफ्रीकन्स को किसी भी तरह के बॉन्डेज में नहीं रखेंगे, किसी भी तरह के बंधन में नहीं रखेंगे। पॉवर्टी, दरिद्रता का बंधन नहीं होगा, फिर डेप्रीवेशन, किसी भी तरह का हानि उनको नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी तरह का पीड़ा, सफरिंग का मतलब है पीड़ा नहीं होगा, और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होगा कि ये मेल है फीमेल है ऐसा, या कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने उनको ये भी आशा दे दिया कि इस तरह के जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी अत्याचार है, वो फ्यूचर में कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो जीत पाया है वो जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी के लिए था। जस्टिस न्याय के लिए था, शांति के लिए था और मानव गरिमा के लिए था। इसलिए वो इन आइडियल्स को ध्यान में रखते हुए ही फ्यूचर अफ्रीका को सेट करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, fourth question, what does courage mean to Mandela? Mandela learned the meaning of courage from his comrades who were against apartheid. He learned that courage was not the absence of fear but the victory over it. According to him, a brave man is not the one who does not feel afraid but the one who conquers fear. मंडेला के अकॉर्डिंगली साहस का मतलब क्या था? मंडेला ने साहस का मीनिंग अपने कॉमरेड्स, अपने साथियों से या अपने मित्रों से सीखा था जिन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ाई किया था। और उन्होंने ये भी सीखा था कि करेज या साहस भय का अभाव नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो जीत है, भय के ऊपर जो जीत है वही है। और वो ये भी बताते हैं कि वीर पुरुष वो नहीं है जिनको भय नहीं है, बल्कि वो हैं जिन्होंने भय पर विजय प्राप्त किया है। ओके, सो दैट वाज हिज डेफिनेशन ऑफ करेज। Now coming to the fifth question, what twin obligations does Mandela mention? Mandela mentions that in life every man has twin obligations. One is obligation towards family, parents, wife and children, and the other is his obligation to his people, community and his country. A man in a civilized society can fulfill these obligations according to his own inclinations and ability. मंडेला यहाँ पर ट्विन का मतलब है दो कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। वो क्या क्या हैं? मंडेला यहाँ पर बताते हैं कि हर मनुष्य का दो कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य उनका अपने फैमिली के प्रति है, अपने पेरेंट्स हो, अपने वाइफ या अपने बच्चों के प्रति है पहला कर्तव्य। और दूसरा कर्तव्य है लोगों के प्रति, समुदाय के प्रति या अपने कंट्री के प्रति है। और एक सभ्य सोसाइटी में रहने वाला कोई भी आदमी इन दोनों ऑब्लिगेशंस को बहुत अच्छी तरह इच्छा के साथ और उनके इच्छा के अनुसार या उनकी योग्यता के अनुसार इन दोनों ऑब्लिगेशंस को निभा सकते हैं, इन दोनों कर्तव्यों को निभा सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ अ फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ लेट अस कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज discuss how Mandela's understanding of freedom changed with age and experience. When Mandela was a child, he was free to run in the fields, free to swim in the stream, free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As a student, he wanted freedom for himself, the freedom to stay out at night, read what he pleased and go wherever he chose. When he became a youth, he realized that he was deprived of the basic rights of humans like achieving his potential, earning his keep, of marrying and having a family. Slowly he realized that his own race were the victims of such oppressions. This inflamed his purpose for the collective struggle against injustice, and it gave him the moral strength to become a courageous man, and he developed a hunger for freedom for his people. Thus, age and experience made his perspective more wide.
तो यहाँ पर मंडेला के लिए जो फ्रीडम स्वतंत्रता है वो अपने एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है। उनकी समझ, जो फ्रीडम की जो समझ है वो चेंज होते रहते हैं। जब वो एक छोटा सा बच्चा था, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, वो क्या करते थे, खेतों में दौड़ते थे और नदियों में तैरते थे। और वो उनको ये भी स्वतंत्रता था कि वो जो भुट्टे हैं उसको रोस्ट करके खा सकते थे। फिर वो बैल के ऊपर चढ़ के आराम से राइड ले सकते थे। जब वो एक स्टूडेंट हो गया, जब वो पढ़ाई करने लायक बन गए, तब उनको यही फ्रीडम, उनको बस अपने लिए फ्रीडम चाहिए था। कि क्या क्या फ्रीडम चाहिए था उनको, जैसे कि द फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट, रात को बाहर रहने का स्वतंत्रता चाहिए था उनको अपनी मनपसंद चीज़ें पढ़ने की स्वतंत्रता चाहिए था, और जहाँ जो मर्जी जाना, जहाँ पर जाने का स्वतंत्रता चाहिए था। यही था उनका फ्रीडम एज अ स्टूडेंट। और जब वो एक यूथ बन गया, जब वो अपनी युवावस्था में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनको बेसिक राइट्स जो हैं वो भी नहीं मिल रहे थे, जो मूल अधिकार है वो भी उनसे छीन लिए गए थे। उसके बारे में उनको पता चला जब वो यूथ बन गए थे। तो तब उनको ये पता चला कि अचीविंग हिज पोटेंशियल, वो अपने पोटेंशियल को अपने मतलब अपनी जो ताकत है उसके अकॉर्डिंगली जो कमाना है वो भी नहीं कर सकते थे। फिर अर्निंग हिज कीप का मतलब है वर्क इन रिटर्न फॉर फूड एंड अकोमोडेशन, फूड एंड अकोमोडेशन के लिए वर्क करना, काम करना, वो भी नहीं कर सकते थे। और मैरी करके एक फैमिली बसाना, वो उसकी भी स्वतंत्रता नहीं था। और लेकिन आराम से, स्लोली ही रियलाइज्ड दैट, आराम से उनको ये भी समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें बस उनके रेस या उनके कलर के जो लोग हैं उन्हीं से छीन लिए गए थे। मतलब कि वही उनके शिकार बन गए थे। जो उनके रेस के थे वही सच ऑपरेशंस को फेस कर रहे थे। तो ये सोचकर उनको, और उनके अंदर जो स्पिरिट हुआ वो और स्टिमुलाइज हुआ, वो और इन्फ्लेम हो गया, वो और बढ़ गया। और वो इसलिए वो कलेक्टिव स्ट्रगल करने लगा। कलेक्टिव स्ट्रगल का मतलब है सामूहिक संघर्ष करने लगा। किसके अगेंस्ट? अन्याय के अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट करने लगा। और वो उसको एक नया स्ट्रेंथ दे दिया, एक साहस दे दिया, एक करेजियस मैन बनने का, एक साहसी आदमी बनने का ताकत दे दिया। एंड इस तरह वो एक उसके अंदर है ना, ये फ्रीडम के लिए एक हंगर डेवलप होता है। इस तरह एज और एक्सपीरियंस, उनके जो पर्सपेक्टिव है, उम्र और अनुभव, उनके जो योजना है उसको और चौड़ा बना दिया है। तो यही है मंडेला का अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। इसमें चाइल्ड के बारे में बताया है, फिर स्टूडेंट के बारे में बताया है, और यूथ में उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए थे फॉर द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। ओके, थैंक यू।